Okay, class 7th. Yesterday we have read about modal auxiliaries. I had told you about the what are modals and what are modal auxiliaries. Modal auxiliaries are those helping verbs which express the mode or manner of the action denoted by the verb. Those were helping verbs are called modal auxiliaries. This I told you, and I told you that there are 13 modals or modal auxiliaries. I had told you about all these, and some of the points, some of the models we have read yesterday. Now we will continue it today. First, I had told you about will, where we use will. Second was shall, where we use shall. Third one, can. Can is used for the ability to show, express the ability of a person. And fourth one, may. May is expressed for permission. Next, I told you about would. would के बारे में मैंने आपको बताया था. would after that should के बारे में बताया था. It is the past tense of shall and would is the past tense of will. Now today we have to continue this chapter from the 7th model. 7th is might. Today we will study about might. Might is used as the past tense of may in indirect speech. As you all have read the direct and indirect speech, so might is used as the past tense of may in indirect speech. Indirect speech में हम may के place पे while changing the direct speech into the indirect speech we write might in the reported speech. So let's see the example. So let's see the example. Here it is. Direct speech is he said he may come today. He said he may come today. In this sentence, the reported speech, in the reported speech, may is given. He may come today. And when we are changing it into the indirect speech, you people can see that here may is given. Then while changing it into the indirect speech, what we will do, he said will be written as it is because here said is given. It is in the past tense. We will write the same. He said that he might come that day. ओके टुडे आपका दैट डे में चेंज हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था. सो हियर इट इज. नेक्स्ट पॉइंट इज B1. माइट इज यूज टू एक्सप्रेस द लीस्ट पॉसिबिलिटी. लीस्ट पॉसिबिलिटी मीन्स, जब पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, ठीक है, जब बहुत कम संभावना होती है किसी चीज की, किसी वर्क के, किसी काम के होने की बहुत कम संभावना होती है, वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटी, तो इसके लिए हम माइट का यूज करते हैं. मीन्स see the example, it might rain tonight. Okay, here it is showing that there is very poor possibility, that's why we are using here might. means बहुत कम संभावना है कि means रात में बारिश हो सकती है. Here also we are talking about the possibility, that's why we are using might in this sentence. Next point is might is used to ask permission. परमिशन के लिए भी हम might का यूज करते हैं. ओके, whenever we have to ask for permission, then we use permission. We use might. For example, might I make a suggestion. Okay, here यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या मैं कोई सजेशन दे सकता हूँ, तो we are using might over here. Okay, next note is written over here. See, might is more formal than may. माइट का यूज हम ज्यादा करते हैं, ठीक है, मे की जगह पे. जब भी पुअर पॉसिबिलिटी मीन्स लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है तो हम माइट का यूज करते हैं. सो दिस was all about might, that might is used as the past tense of may in the indirect speech. It is used to express least possibility or very poor possibility. And the third point is to ask for permission, we use might. So this was all about might. Now let's come on our next point. Next one is could, where we use could. हम could का यूज कहाँ पे करते हैं? Could is used as the past tense of can in indirect speech.
In the reported speech, while while changing the direct speech into the indirect speech, when might is sorry could can is given, then while changing it into the indirect speech we remove can and write over there could. हम could write करते हैं in the indirect speech. It is the past tense of can. So see the example. He said I can finish this task in a day. Okay, now while changing it into the indirect speech, he said that he could finish that task in a day. This की जगह that हो जाता है. This I told you before in the indirect speech also. So next point is B point is could is used to express ability in the past. Could is used to express the ability in the past. could का यूज हम एबिलिटी के लिए, एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. इन द पास्ट मीन्स पास्ट टेंस के लिए. ठीक है. आई कुड डू दैट वर्क. इन द एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर. आई कुड डू दैट वर्क बट नो बडी गेव एनी चांस टू डू दैट. मीन्स मैं ये काम कर सकता था. कुड का यूज किया गया है इन द पास्ट टेंस टू शो द एबिलिटी. In the starting I told you that we use can here. As I told you that we use can to express the ability of a person. Okay, but here past tense is not given over here. Means past tense के लिए हम can का use नहीं करते हैं. We use could to express the ability in the past tense. जब भी past tense की बात हो रही होती है और ability express करने की, तो हम could का यूज करते हैं. आई कुड डू दैट वर्क बट नो बडी गेव एनी चांस टू डू दैट. मैं ये काम कर सकता था. ओके, बट नो बडी गेव एनी चांस टू डू दैट. ठीक है, लेकिन किसी ने मुझे चांस नहीं दिया ऐसा करने का. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कुड इज यूज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट. कुड का यूज हम किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं. अगर हमें पोलाइटली किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी हम कुड का यूज करते हैं. सो सी द एग्जाम्पल. कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट. यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कुड. So this was all about could. Could is used in the past tense of can in the indirect speech. Could is used to express the ability in the past. Ability के लिए भी हम could का यूज करते हैं but in the past tense. And the third one is could is used to express a polite request. किसी भी polite request के लिए हम could का यूज करते हैं. So now next one is must. अब देखिए must, where we use must. Must is used to express compulsion, necessity, emphatic, advice. Okay, कंपल्सन मीन्स होता है अगर कोई मजबूरी होती है. ठीक है, देन वी यूज मस्ट. या फिर नेसेसिटी, ज़रूरत, एम्फेटिक, एडवाइस. अगर कोई एडवाइस होती है तब हम मस्ट का यूज करते हैं. लाइक सी द एग्जाम्पल. द लेटर मस्ट लीव बाय टुडेज मेल. यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? नेसेसिटी बताई जा रही है. ओके ओके, नेक्स्ट इज हियर द लेटर मस्ट लीव बाय टुडेज मेल. मीन्स ये नेसेसिटी है कि मीन्स आज जो लेटर है उसे आज के मेल से उसे जाना होगा. सो हियर नेसेसिटी इज बीइंग शोन. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर मस्ट. नेक्स्ट, यू मस्ट सी अ डॉक्टर इमीडिएटली. एम्फेटिक एडवाइस मीन्स ये तुरंत की जो एडवाइस है वो दी जा रही है. यू मस्ट सी अ डॉक्टर इमीडिएटली मीन्स तुम्हें तुरंत डॉक्टर को से मिलना चाहिए. नाउ आवर नेक्स्ट वन इज नीडेंट. नीडेंट का यूज हम कब करते हैं? नीडेंट इज यूज टू शो एब्सेंस ऑफ कंपल्शन. ओके, मीन्स जब कोई मजबूरी नहीं होती. कंपल्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि मीन्स जब कोई कंपल्सन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ कंपल्शन. सो एट दैट टाइम वी यूज नीडेंट. तब हम नीडेंट का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल.
यू नीडेंट कम टू माई ऑफिस मीन्स तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नीडेंट अटेंड माई दे नीडेंट अटेंड माई लेक्चर. सो इन दिस सेंटेंस ये बताया जा रहा है कि तुम्हें मेरा लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ आई एम टेलिंग यू यू नीडेंट अटेंड माई क्लास, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यू नीडेंट अटेंड माई क्लास, तो मीन्स आपको मेरी क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. इससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंपल्सन बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है. ओके, सो इन दिस केस वी यूज नीडेंट. नेक्स्ट वन इज द 11th one, ought to. Ought to, where ought to is used. Ought to is used to express the duty or moral or social obligation. ought to का यूज हम किसी भी तरह की ड्यूटी अगर है, ठीक है, moral social obligation is there, then we use the ought to in a sentence. It is used to express duty or moral or social obligation. For example, you ought to obey your parents. You ought to obey your parents. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स. ठीक है, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स की बात माने, बात को सुने. देन इट इज़ कॉल्ड द मॉरल ऑब्लाइजेशन. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ought to. नेक्स्ट वन इज we ought to be ashamed of ourselves for such conduct. ठीक है, यहाँ पे किसी कंडक्ट के लिए शेम फील करने की बात की जा रही है. ठीक है, मीन्स दैट पर्सन मीन्स दे आर हाईली ऑब्लाइज्ड, वो काफ़ी शर्मिंदगी फील कर रहे हैं. दे आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ देम सेल्फ, ओके, फॉर देयर प्रोडक्ट. सो वी आर यूजिंग ought to फॉर दैट. नेक्स्ट वन इज डेयर. नाउ वेयर वी यूज डेयर. डेयर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? डेयर इज यूज टू एक्सप्रेस फियरलेसनेस ऑफ एनी रिजल्ट. डेयर का यूज हम किसी फियरलेसनेस, किसी डर के रिजल्ट के लिए हम करते हैं. लाइक हाउ डेयर यू से सच अ थिंग. जैसे कि हम कहते मीन्स तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की. सो एट दैट टाइम वी यूज डेयर. हाउ डेयर यू से सच अ थिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह की बात बोलो. ओके, लाइक वी कैन से दैट हाउ डेयर यू टू डू सो. ठीक है, तुमने हिम्मत कैसे की कि तुम ऐसा करो. ओके, नेक्स्ट द लास्ट 13 एंड द लास्ट वन इज it is used to express a habitual of habit of past time. use to का यूज हम कब करते हैं? जब कोई हैबिट होती है किसी की, जब किसी की कोई हैबिट होती है तो हम उसके लिए यूज टू का यूज करते हैं. ओके, आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली बट दीज डेज आई डोंट. इन दिस एग्जाम्पल यूज टू का यूज किया गया है बिकॉज इट इज़ अ हैबिचुअल फैक्ट दैट आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली. मैं डेली रोज़ाना मंदिर जाता हूँ, ओके, या जाती हूँ. बट दीज डेज आई डोंट, लेकिन इन दिनों मैं नहीं जा रहा हूँ. सो हियर इन दिस सेंटेंस यूज टू का यूज किया गया है टू शो द हैबिचुअल फैक्ट ऑफ द पास्ट टाइम. पास्ट टाइम की अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट है तो हम यूज टू का यूज करते हैं. So all these were our 13 modal auxiliaries. Might. Today we have read about might. Might का यूज हम may के past tense के लिए करते हैं and least possibility and for asking for the permission. And could is used in the past tense of can in the indirect speech and also to express the ability in the past and also to express a polite request. We use could. And must, I told you about that. Must is used to express compulsion. अगर कोई मजबूरी होती है, necessity, emphatic advice, then we use must. Needn't is used to show the absence of compulsion. अगर मजबूरी means कोई मजबूरी नहीं है तो उसके लिए हम needn't का यूज करते हैं.
ought to का यूज हम किसी मॉरल सोशल ऑब्लाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। अगर इफ वी आर ऑब्लाइज्ड फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क दैट देन वी यूज ought to. नेक्स्ट, डेयर इज यूज टू एक्सप्रेस फियरलेसनेस ऑफ एनी रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट के डर से यूज किया जाता है, मीन्स डेयर का यूज हम करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। एंड यूज टू इज यूज फॉर द हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल वर्क, अगर कोई है एक्शन उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफ द पास्ट टाइम। सो ऑल दीज वर अबाउट द मॉडल एंड ऑक्सिलरीज